ہم چند لمحوں کے لیے کچھ دو چار باتیں جو بڑی اہم ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسپیکر کو سیٹ کرو، بالکل اسپیکر آواز فل کر۔ تو برادران گرامی، آج کے اس دور کے اندر ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر آزمایا ہوا ہے۔ آج اس کا ہم نے حل نکالنا ہے چند لمحوں کے لیے۔ کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے کہ ہر انسان پریشانی کے اندر دو چار ہے؟ کوئی اولاد کی جانب سے پریشان ہے، کوئی مصیبتوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اس وجہ سے پریشان ہے، اور کسی کے ہاں اولاد تو ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، اور کسی کے ہاں اولاد ہے اور نافرمان ہے، کسی کے ہاں اولاد ہی نہیں۔ حاصل قیاس مختلف طریقوں، مختلف معاملات کی بنا پہ ہر انسان پریشانی کے اندر دو چار ہے۔ آئیے چند لمحے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں۔ کہاں خرابی ہے، کہاں پرابلم ہے جس وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ زندگی کے اندر چند اصول ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ 3 اصول ہیں زندگی کے۔ زندگی کے کتنے اصول ہیں؟ 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین، آسمان، چرند پرند، حیوانات، نباتات، سب کچھ جو کچھ بھی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، اس کی بقا ہے۔ ہر چیز، ہر وجود ہستی کی کوئی غرض و غایت ہے، اس کا مقصد، اس کی بقا ہے۔ حضرت پیارے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے دیوار کے اوپر چھپکلی کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں موسیٰ کلیم اللہ تھوڑا تھا؟ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ریاضت کرتا ہوں، میں کم تھا؟ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آواز آئی، اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، عزت ذوالجلال کی قسم، آواز آئی، پیارے موسیٰ ابھی ابھی اس چھپکلی نے مجھ سے سوال کیا، مالک تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مالک تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ برادران گرامی، رب نے کہا، پیارے موسیٰ میں نے کسی مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، اور چھپکلی کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے۔ برادران گرامی، ایک ہم نے یہ اصول زندگی میں یاد رکھ لیا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور جب انسان کوئی بھی چیز، مثلا شامیانہ ہے، جسے آپ پنجابی کے اندر تمبو کہتے ہو، شامیانہ، اب اس کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ دھوپ سے بچاتا ہے، بارش کے قطرات سے بچاتا ہے، بارش برستی رہے، شامیانہ لگا ہو تو بارش کے قطرات نیچے نہیں آتے ہیں۔ اور ڈیکوریشن، بناؤ، خوبصورت سجاوٹ یہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے شامیانہ لگتا ہے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، سجاوٹ ہو جاتی ہے، اور بارش کے قطرات سے بھی انسان شامیانے کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور دھوپ سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ شامیانے کا کوئی مقصد ہو گیا۔ جب تک یہ زندگی کا اصول، شامیانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دوسرا مقصد، جب کوئی بھی چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، قیمت اباب جاتی ہے، قیمت بلندی کی طرف جاتی ہے، عزت بڑھتا ہے، مقام بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ شامیانہ ایک جگہ پہ لگایا، اس نے پوری ڈیکوریٹ کیا، ڈیکوریشن کیا، سجاوٹ کی،
बनावट की, बड़ा खूबसूरत लगा, बारिश के कतरात से बचाया, धूप की तपश से बताया। अब वो अपना मकसद पूरा किया, उसकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि मकसद को पूरा कर रही है। और जब मकसद को पूरा नहीं करता शामियाना, धूप आती है, बारिश के कतरात आते हैं, सजावट नहीं रहती, तो फिर क्या होता है? उसकी कीमत घट जाती है, कीमत घट जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर बिल्कुल खत्म हो जाए तो फिर क्या होता है? वही शामियाना जिसको मालिक बड़ी हिफाजत से तय लगा के अलमारी के अंदर महफूज रखता, आज वही शामियाना कहां फेंका है? रूढ़ी के ऊपर फेंक दिया है। अब सवाल यह है कि जब अलमारी में बड़ी हिफाजत से रखता था, क्यों रखता था? शामियाने को जब उतारता, उसको बड़ी तय लगाता, अलमारी के अंदर सजा के रखता, क्यों? वो शामियाना मकसद पूरा कर रहा था, उसकी कीमत बढ़ रही थी। जब वह अपने मकसद को भूल गया शामियाना, वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा, तो फिर क्या हुआ? मालिक ने उसको कहां फेंक दिया? रूढ़ी के ऊपर फेंक दिया। अजीजा ने घरामी, ये 3 असूल याद रख ले। नंबर 1, कोई ना कोई हर चीज की कोई गर्जो गायत है। नंबर 2, जब वो अपनी गर्जो गायत को पूरा करता है तो कीमत बढ़ती है। अगर वो अपने मकसद को पूरा नहीं करती, कीमत या तो घट जाती है या खत्म हो जाती है। नंबर 3, अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा तो मालिक उसकी निगरानी नहीं करता, मालिक उसकी भी निगाहदाश्त नहीं करता, क्योंकि वो मकसद ही पूरा नहीं कर रहा। अब बल्ब है तो बल्ब, इसका मकसद क्या? रोशनी देना। जब तक रोशनी देता है वो हमें बड़ा हसीन लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। और जब वो मकसद पूरा नहीं करता, अब पहले तो हम दिन में 4 मरतबा देखते हैं बल्ब हमारा लगा है कि नहीं, और रात को उठ के देखते हैं वो रोशनी दे रहा है कि नहीं दे रहा। अजीजा ने घरामी, जब तक वो बल्ब रोशनी देता है हम उसकी निगरानी करते हैं। जैसे ही वो रोशनी नहीं देता तो फिर क्या होता है? उसको उतारते हैं और रूढ़ी के ऊपर फेंक देते हैं, नाली के अंदर फेंक देते हैं, क्योंकि वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा। आजल कयास, सर के बाल है, ये हमारे सर के ऊपर है, इसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, इससे हमें सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, इसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, क्योंकि हमारे सर को खूबसूरत बना के रखा है इसने। हम इस बालों की हिफाजत करते हैं। जब हमाम पे जाते हैं, वो बाल जब काट देता है, अब वो बाल मकसद पूरा नहीं कर रहे, उसको फेंक दिया जाता है। अजीजा ने घरामी, अब इन असूलों को जरा समझिए, इनको जरा समझिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कोई मकसद था इंसान को पैदा करने का। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाए मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसान का मकसद हयात अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है। मेरे आका फरमाते अक़रब मा यक़ूलुल अब्द मिन रब्बी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन, सबसे पसंद वो शख्स है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करता है। अल्लाह को वो बड़ा पसंद है, अल्लाह उसे प्यार करता है, अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है, अल्लाह अपना उसे यार बना लेता है, जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करता है। रब कहता है ये पेशानी मैंने इसलिए तुम्हें अता की है, इस पेशानी को किसी और के सामने झुकाना नहीं। जब झुकाने की बारी आए तो वहदहू ला शरीक, यकता रब के सामने इस पेशानी को तूने झुकाना है। अजीजा ने दोस्त, अब मकसद हयात अल्लाह की इबादत करना। अब सोचिए, हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम अपना मकसद हयात को भूल गए तो फिर नतीजा क्या निकला? हमारी इज्जत, हमारा एहतराम, हमारी बुलंदी खत्म हो गई। एक दौर वो था, गज़वा बदर हो, गज़वा उहद हो, गज़वा हुनैन हो, हाज़र कयास, कोई भी गज़वात में से कोई भी गज़वा हो,
तो फिर युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सातिन आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, अल्लाह इतनी को फरिश्तों को नजूल करता है, वो दर पे दर फरिश्ते आते हैं और कुफार को वासले जहन्नम करते जाते हैं। अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाता है। वो 313 हो या कलील तादाद हो, आजार भी ना हो, आलात भी ना हो, असलिहा भी ना हो, फिर भी कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? वो क्यों कामयाब होते थे? क्योंकि अपना मकसद हयात पूरा कर रहे और अल्लाह उनकी निगाहदाश्त कर रहा था। और जिसकी रब निगरानी करे, जिसकी निगाहदाश्त खुदा करे, वो किस मैदान में हार सकता है? किस मैदान में उसे नाकामी मिल सकती है? उसे तो फिर हर मैदान में कामयाबी मिलेगी ना, उसे इज्जतें मिलेगी, उसे बड़ा मुकाम मिलेगा, रिफत मिलेगी, क्योंकि वो अपना मकसद हयात पूरा कर रहा है। अजीजा ने गरामी, मैं और आसान मसाल के जरिए समझा देता हूं। ये स्पीकर है, हम इसकी हिफाजत करते हैं, ये अपना मकसद जो है वो पूरा कर रहा है, ये अपना मकसद पूरा कर रहा है, हम इसकी निगरानी करते हैं। जब यही स्पीकर अपना मकसद पूरा नहीं करेगा, हम इसकी निगरानी छोड़ देंगे, हम इसकी निगरानी छोड़ देंगे। अगर जब हमारा मकसद हयात अल्लाह की इबादत करना है, जब हम अपना मकसद हयात पूरा नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह हमें निगरानी है, अल्लाह हमारी छोड़ देगा, अल्लाह हमारी निगरानी को छोड़ देगा, निगाहदाश्त को छोड़ देगा। बरादरान गरामी, बरादरान मिल्लत, मेरे अहल सुन्नत के कई साथियों, ये जिंदगी के 3 असूल हैं। हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। जब मकसद पूरा करती है तो कीमत बढ़ जाती है, जब मकसद पूरा नहीं करती तो कीमत घट जाती है। जब कीमत खत्म हो जाती है फिर मालिक उसकी निगरानी नहीं करता। घर में जितनी अशिया हैं उन पे आप मिसाल ये लगा सकते हैं। कोई भी घर की चीज है, जब अपना मकसद पूरा करती है आप उसकी हिफाजत करते हो, जब नहीं पूरा करती तो आप उसे बाहर फेंक देते हो, उसकी निगरानी नहीं करते। ऐसे ही जब तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी करोगे, अल्लाह तुम्हारी निगाहदाश्त करेगा। अजीजा ने गरामी, रब्बे कायनात ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मत, फरमाया मैं तुम्हें बेहतरीन उम्मत पैदा किया है। बड़ी उम्मतें आई हैं, किसी को नहीं कहा, उम्मत मुस्तफा को कहा कि ये तुम बेहतरीन उम्मत हो। बरादरान गरामी, बताइए तो सही, आज एक औरत की इज्जत को लूटा जाता है, उसे बरहन्ना किया जाता है, तो हम उसको चादर देने की बजाय वीडियो बना रहे होते हैं। आज बरादरान गरामी क्या हो रहा है? बेटा बाप को नोच रहा है, बेटी मां के गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ रही है। आज क्या हुआ? क्या वजह है? आज बेटा बाप के गिरेबान को क्यों पकड़ रहा है? मां बेटी अपने मां के जिस्म को क्यों नोच रही है? हमने अपने मकसद हयात को भूल गए, अल्लाह ने निगरानी को छोड़ दिया है, अल्लाह की निगरानी से निकल गए हैं, खुदा की निगाहदाश्त से निकल गए हैं, मालिक हमारी निगरानी नहीं कर रहा। बरादरान गरामी, आज इंसान को जलाया जाता है, लेकिन बचाने की बजाय हम वीडियो बना के तमाशा बना रहे होते। अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम उसको बचाने की बजाय उसकी जेब से बटवा निकाल के पैसे निकाल रहे होते हैं। किधर हमारी मुसलमानियत चली गई? ये हमारे दिल क्यों जंगलूदा हो गए? बरादरान गरामी, हम अपने मकसद हयात को भूल गए। हम खैरुल उम्मत थे, लेकिन अब हम शर्रुल उम्मत बन गए हैं। खैरुल उम्मत नहीं है, बेहतरीन उम्मत नहीं रह गए, हम शर्रुल उम्मत बन गए हैं। हमारा मकसद हयात खुदा की इबादत करना था, इंसानियत की कदर करना था। क्या हम जानते हैं कलमा तैयबा पढ़ लेना, मुसलमान हो जाना, यह ईमान मुकम्मल है? नहीं। नमाज पढ़ लेने से ईमान मुकम्मल है? नहीं। बरादरान गरामी, जब तक हम हकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तब तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमें हकूकुल इबाद के मुतालिक सोचना होगा। हो सकता है अल्लाह अपने हकूक को माफ कर दे, लेकिन जो हकूकुल इबाद है वो कभी माफ नहीं होने जब तक बंदा माफ नहीं करेगा। आज हम किसी का दिल दुखा देते हैं,
اور پھر دل دکھا کے آ کے سجدے کرتے ہیں، چوری کر کے سجدے کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر کے دل آزاری کر کے سجدے کرتے ہیں۔ برادران گرامی، ہم اپنے مقصد حیات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارا مقصد حیات دین اسلام جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جب اس دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، پھر ہمارا دین مکمل ہوگا، پھر ہمارا مقصد حیات پورا ہوگا۔ اور نمبر 2،